हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है बिकॉज इट्स माय प्रिविलेज टू इनवाइट वन ऑफ माय प्रोफेसर्स फ्रॉम द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनुराग दीप सर, to deliver the lecture on the topic that is recent development in personal laws, particularly focusing upon the Waqf Amendment Act of 2025. Sir needs no introduction. Sir is currently serving as the professor in the Indian Law Institute and a resource person in Delhi University Faculty of Law. Sir has over 50 publications both in Hindi and English language, including the Journal of Indian Law Institute, Annual Survey of Indian Law, Indian Society of International Law, LexisNexis, Pratyogita Darpan, Bloomsbury, Sage, and many more. So in the year 2018 and 19, Sir has also authored two books, which is Law of Sedition in India and Freedom of Expression and Bail, and Law and Practice in India, from which the book on sedition is quoted more than 10 times by the Law Commission of India in its 279th report. Sir has a core interest particularly in constitutional and criminal law. That is the reason why back in 2020 Sir was invited by the Criminal Law Reforms Committee, which was constituted by the Government of India, to contribute in the reform process, particularly in the field of criminal law. And apart from Delhi University, Sir was also served as the resource person in the National Law University Delhi, Jawaharlal Nehru University, Canadian High Commission, Haryana Institute of Public Administration, and others. So who would be the better person than Sir himself to talk on this recent and very important topic? So आज की इस वीडियो में सर ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि क्या सही में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, क्या वो आर्टिकल 26 के कॉन्ट्रावेंशन में है या नहीं, सिर्फ इन्हीं चीज को कवर नहीं किया, बल्कि डिफरेंट पर्सनल लॉज से जुड़े जो रिफॉर्म्स है या रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है, ब्रिटिशर्स का क्या रोल रहा है डिफरेंट पर्सनल लॉज को लेकर, और डिफरेंट कंट्रीज में जो प्रेजेंट मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उनको इंडियन पर्सनल लॉज से कैसे कंपेयर किया जा सकता है, इस चीज पर भी सर ने यहाँ जोर डाला है। सो हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाए, लेकिन आई विल एश्योर यू कि इट इज टोटली वर्थ वॉचिंग। सो वीडियो पूरा देखिएगा। तो मंगलातन विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेनी थैंक्स टू मंगलातन यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार सर, other dignitaries, my friend Shri Pradeep ji. Special thanks to Pradeep ji because I have hardly spoken on personal laws. I have spoken on criminal laws, I have spoken on constitutional laws. But he insisted that, sir, you speak on personal laws with a special reference to work. So because of this, I had to study it. So I'm really thankful to Pradeep ji. This is also a topic on which a lot of confusions are there. And our job is to remove the confusion and to bring to light the laws and the facts. Unlike the politicians, राजनीतिज्ञों से अलग हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अकादमिक उद्देश्य है, बौद्धिक उद्देश्य है। हमारा काम किसी खास समुदाय को अट्रैक्ट करना नहीं है, किससे वोट लेना नहीं है। हमारे लिए जैसे प्रियम्बल में लिखा है सब बराबर है, तो किसी का आंख मूंद कर किसी एक ग्रुप का साथ देना और दूसरे का विरोध करना, यह हमारी मजबूरी नहीं है। राजनीतिज्ञों की मजबूरी हो सकती है। इट मे बी ए कंपल्सन ऑफ द गवर्नमेंट और द ओपोजिशन, बट इट इज नॉट आवर कंपल्सन। हम लोग जो एकेडमिशियंस हैं उनका कोई कंपल्सन नहीं है, और इसलिए आवर वॉइस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन नो कि देश के लिए क्या सही है, व्हाट इज गुड फॉर कंट्री, व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी, व्हाट इज गुड फॉर आवर constitution which is the Gita, which is Quran, which is Guru Granth Sahib, for all in the field of education. So therefore this type of discussion is very important. So I will request in advance to all participants that I am thankful कि आपने ज्वाइन किया, लेकिन मैं ज्यादा थैंकफुल रहूंगा यदि आप अपने क्वेश्चन, अपनी शंकाएं हिंदी या अंग्रेजी में चैट बॉक्स में डालते चलें। वेट ना करें, इंतजार ना करें। जो भी मन में लग रहा है कि नहीं ये शंका है, जरूर डालिए आप, बिना संकोच के। आखिरी तक का इंतजार मत करिए।
आज जो विषय है चर्चा का, डिस्कशन का, टाइटल ऑफ द डिस्कशन इज रिसेंट अमेंडमेंट इन पर्सनल लॉ। जो पारिवारिक विधि है, जो वैयक्तिक विधि है, उसमें जो अभी संशोधन हुए हैं, नए संशोधन, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। सो द टॉपिक इज बोथ contextual as well as broad। contextual इसलिए कि रिसेंटली वक्फ एक्ट 1995 हैज बीन अमेंडेड। संशोधन हुआ है 1995 के कानून में। वक्फ एक पारिवारिक विधि का हिस्सा है, पर्सनल लॉ का हिस्सा है। पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ जो है उसको दो कैटेगरी में बांट दे, एक सिविल लॉ, एक पर्सनल लॉ। सिविल लॉ का मतलब हो गया जो हम राज्य के साथ जिन रिलेशनशिप में बनते हैं। वेरी गुड प्रशांत कुमार, हम बात करेंगे इस पर। राज्य के साथ जिस रिलेशनशिप में हम बंधते हैं, वी आर somehow related with the state। सो हो गया सिविल लॉ, जिसमें कि राज्य हमें कुछ जिम्मेदारी देता है। क्रिमिनल लॉ भी हो गया, राज्य की जिम्मेदारी देता है हमें चोरी नहीं करना है। सिविल लॉ हो गया, सड़क पे सही तरीके से चलना है, कानूनों का पालन करना है। ये कानून हो गया जो राज्य के कानून है, वो राज्य से जोड़ते हैं हमको। हमारे व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं डील करते, परिवार के व्यवहार से नहीं डील करते। बट देन इन आवर लाइफ वी गो टू स्कूल, वी गो टू ए शॉप। शॉप में जाते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए लॉ बनाया गया है, उसको फॉलो करना है। और पर्सनल लॉ नहीं है। क्यों? सब पे लागू होता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हिंदुओं पर भी लागू होता है, मुसलमानों पर भी लागू होता है, क्रिश्चियन पर भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा जनरल सम व्यवहार है, ट्रांजैक्शन है। सिविल लॉ है, सीपीसी, किसी की जमीन है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, दूसरे से व्यवहार से जुड़ा हुआ है, पारिवारिक मुद्दा नहीं है। दूसरा विषय क्या है? दूसरा विषय जो हमारा अपना मुद्दा है, परिवार का मुद्दा, हम खुद डिसाइड करते हैं, स्टेट उसमें इंटरफियर नहीं करता। हमें किससे शादी करनी है, उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है। और हम शादी करते हैं, हम अपने रीति रिवाज से शादी करेंगे। हिंदू है, हिंदू में शादी करेंगे, अपनी कास्ट में शादी करेंगे। पर्सनल लॉ, पर्सनल मैटर है मेरा। अपनी बहन की शादी, अपने भाई की शादी, हम गोद लेना चाहते हैं, हम अपने परिचित में से, अपनी कास्ट से, दूसरे की कास्ट से, अपने रिलीजन के व्यक्ति से, जनरली हम यही करते हैं। हमारा पर्सनल मैटर, पर्सनल मतलब जो आम जनता को नहीं बताते। तो ये पर्सनल मैटर है, इसलिए कहते हैं पर्सनल लॉज। फैमिली मैटर है, फैमिली के बीच में होता है। ये फैमिली के बीच में ट्रांजैक्शन है, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ये फैमिली के बीच में ट्रांजैक्शन, फैमिली लॉ या पर्सनल लॉ हमारा व्यक्तिगत मैटर है। ये इसमें कभी कभी स्टेट दखल देती है। जैसे भाई हमारी उम्र क्या होगी, 18 साल लड़की के लिए, 21 साल लड़के के लिए। मजाक में कभी कभी कहते हैं कि 18 साल की उम्र में लड़की तो मैच्योर हो जाती है, वो बुद्धिमान रहती है, पर लड़के को 3 साल और समय लगता है। आप कहते हैं कि भाई लड़की लड़की में विभेद है। देखिए, कानून मानता है कि लड़की जो है ज्यादा बुद्धिमान होती है, 18 साल की उम्र में शादी कर सकती है। लड़का 18 साल नहीं कर सकता, 21 साल में शादी करेगा। तो पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप हुआ है, फैमिली लॉ में एज बता दी गई है, इससे कम में शादी नहीं कर सकते। आप शादी करेंगे कम में तो स्टेट आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। चाइल्ड मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू लॉ में भी चेंज किया गया है। हमें तलाक लेना, वाइफ के साथ नहीं बन रही है, तो ठीक है, भी पर्सनल मैटर है। तो पर्सनल मैटर तो है, पर मतलब नहीं जैसे चाहे मन चाहे आप छोड़ देंगे। हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को मनचाहा नहीं छोड़ सकती। तो उसके लिए कानून बनाकर हस्तक्षेप कर दिया कि कब छोड़ सकते हैं। हिंदू मैरिज में भी कर दिया। पर्सनल लॉज में इंटरफेरेंस किया। इंटरफेरेंस हो सकता है, पर्सनल लॉज है, पर पर्सनल लॉ में कभी कभी इंटरफेरेंस हो सकता है यदि कुछ दिक्कतें आने लगे।
सो डाइवोर्स की प्रोविजन भी हम लोगों ने की, हिंदुओं में की। तो पर्सनल लॉ और जनरल लॉ का फर्क को पहले समझना है। शादी पर्सनल लॉ का विषय है, पर वाइफ को मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या वाइफ जो है सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करती है, अब ये पर्सनल नहीं रहा, अब राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। सो पर्सनल लॉ होते हुए भी उसमें इंटरफेरेंस हो सकती है। यह बात कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही गई है। आर्टिकल 25 में यह बात साफ साफ कही गई है, 26 में यह बात साफ साफ कही गई है कि हमारे पर्सनल लॉ में स्टेट लिमिटेड मामले में दखल दे सकती है। तो यह बात को समझना है कि पर्सनल लॉ इज नॉट एन होली काउ। पर्सनल लॉ इज पर्सनल, पर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, आज से 200, 400, 500, 1000 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं हम तो एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज? बताइए, कोई बताएंगे आप में से? लिखकर भी बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या होते हैं? कोई आपसे पूछे, जल्दी से एक लाइन में जवाब दे दीजिए, बताइए क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कोई भी बताए। मैं देख रहा हूं करीबन 36 लोग हैं, तो 30 तो आसपास विद्यार्थी होंगे, शोध छात्र होंगे, अध्यापक मित्र भी होंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, प्रशांत कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखकर दे दिया है हमें, वैल्यू हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रियम्बल में लिख दिया है, जस्टिस वैल्यू है। तो पर्सनल लॉ भी अब जस्टिस करना पड़ेगा, इक्वलिटी लानी पड़ेगी। आप मनमाने तरीके से पर्सनल, डेमोक्रेसी का ही मतलब है, ये कोई रिलीजियस कंट्री थोड़ी है कि अपने मनमाना करेंगे हम। तो इसलिए इक्वलिटी होनी चाहिए। तो 2006 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और कहा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में महिलाओं को भी, लड़कियों को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। आज से लगभग 20 साल पहले बराबर का अधिकार नहीं था उनको। आवर प्रियम्बल सेज इक्वलिटी, आर्टिकल 14 भी है इक्वलिटी, 15 भी है सेक्स पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल चल जाएंगे, वहां भी बात कही गई है। तो इसलिए संशोधन किया गया पर्सनल लॉ में 20 साल पहले, रिसेंट तो नहीं कहेंगे, 20 साल पहले अमेंडमेंट किया गया। तो पहली बात हमें यह समझना है कि पर्सनल लॉ इज पर्सनल इन नेचर, देयर इज नो डाउट। व्यक्तिगत है, हमारा अपना मैटर है, घर का मैटर है। पर घर के मैटर में भी सब मामले में नहीं, पर कुछ मामले में राज्य का हस्तक्षेप हो सकता है। ऑफ कोर्स उसके ग्राउंड होने चाहिए। यू कैन नॉट मेक आर्बिट्ररी इंटरवेंशन। आप ग्राउंड्स बताएंगे, वो ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत होने चाहिए, संविधान सम्मत ग्राउंड्स होंगे। इफ द ग्राउंड्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल, इट इज फाइन। सो पहला पॉइंट, इज पर्सनल लॉ एंड सिविल लॉ डिफरेंट? द आंसर इज यस। पर्सनल लॉ एंड अदर लॉज which have relation, direct relation with state is different. In personal law, we have relationship between two persons, two families, but not with the state always. In other laws, we have direct relationship with the state, so state can directly interfere. But in these cases, the state cannot directly interfere in all cases. But the second point is, can the personal law be interfered by the state? The answer is yes, of course, it is permissible, because constitutional values have to be preserved. Because religion के नाम पर, personal law के नाम पर पिछले कई सालों से, कई 100 सालों से बहुत अत्याचार हुआ है। कह दिया गया पर्सनल लॉ में कि भाई महिलाएं तो जो है उनको बराबर का अधिकार नहीं दे रहे, तो कमजोर होती है, बुद्धू होती है, बेवकूफ होती है, उनको नहीं पढ़ाना है, कई जगह कहा गया। तो पर्सनल लॉज आर गुड, बट देयर आर मेनी बैड थिंग्स इन पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज थे हमारे यहां, कह दिया गया कुछ में कि जो शेड्यूल ट्राइब उसको छूना नहीं है। हमारे यहां कभी थी, हिंदुओं में स्पेशली, भाई पर्सनल लॉ है, इक्वलिटी के अगेंस्ट में है, क्या उसको जारी रखेंगे? उस पर इंटरफेयर करेंगे, जरूरत पड़ेगी पनिश भी करेंगे। आर्टिकल 17 पनिश करता है। थैंक यू तनिषा। वी विल टेक अप रिलीजियस राइट्स विद पब्लिक इंटरेस्ट। यही तो बात कह रहा हूं मैं अभी। देखिए, रिलीजियस राइट्स है हमारे, एंड हैव एन इफेक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सेम। यस, हमारे रिलीजियस राइट्स तो है, रिलीजियस राइट्स हमें रिलीजन में लिखे हैं, कई रिलीजियस राइट्स हैं। हमारे रिलीजियस राइट है भाई, हम किसके साथ खाएंगे, किसके साथ नहीं खाएंगे। हमने कह दिया अच्छा तुम जो है, तुम तो इस जाति के, तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे। हो सकता है आज से 1000 साल पहले ऐसा होता हो, 200 साल पहले, 4 साल पहले ऐसा होता हो। अब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब जो है बैलेंसिंग करनी होगी। व्हाई? बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट डिसाइडेड बाई
somebody else. Public interest is not decided by religion. Public interest will not be decided by mullah, maulvi and padri and pujari. Public interest will be decided by whom? Public interest will be decided by whom? कोई जवाब देंगे आप में से? Who will decide public interest? The constitution will decide. कोई और नहीं, because rule of law जहां होता है वहां constitution is supreme document. So many things which were right when the religion was okay and the constitution was not there, जैसे ही constitution आया था वो चीज okay नहीं रहती. So पहला point हम सबको समझना है, personal law is different from other laws. It should not be interfered क्योंकि हमारा personal matter है, but personal laws में अगर constitutional values का violation हो रहा है, then it is the duty of the state to interfere. ये हमारे संविधान में बात साफ साफ कही गई है, और नहीं भी कही जाती, ध्यान रखना है. सपोज ये नहीं कही गई होती 25-26 में, जिसकी डिस्कशन मैं करूंगा आगे, इवन देन कॉन्स्टिट्यूशन होने का यही मतलब है. आप देखिए ना, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट से फर्स्ट 10 अमेंडमेंट से आए हैं, उनमें कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इसका क्या मतलब है? आप क्या मनमाना करेंगे? नहीं कर सकते. उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 25-26 में लिमिटेशन नहीं भी होते, इसका मतलब थोड़ी है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तब भी रिस्ट्रिक्शन है. क्यों? वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री. सो पहली पॉइंट हम लोगों ने खत्म कर दिया, और पहला पॉइंट यह था कि पर्सनल लॉज का नेचर क्या है. पर्सनल लॉज में इंटरफेरेंस करना स्टेट की ड्यूटी है यदि जरूरत हो तो. नाउ ये पर्सनल लॉज में जो इंटरवेंशन है, ये इंटरवेंशन का विरोध हमेशा होता है. हमने तो कहा पर्सनल लॉ में इंटरवेंशन तो होता है, करना भी चाहिए, पर इसका विरोध हमेशा होता है. क्यों विरोध होता है? वाई? बिकॉज दोज हु फॉलो पर्सनल लॉज दे आर क्लोजली अटैच्ड. वो उसी को सही मानने लगते हैं जो चल रहा है लंबे समय से. छुआछूत चल रहा है, उसको सही मानने लगते हैं. लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं देना, उसको सोचते हैं सही है, रिलीजन सही हो. अरे सही था भाई, हो सकता है सही रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सही नहीं है. इन डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इसका ऑपोजिशन हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है. आई विल टेक यू बैक टू 1891, 1891, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन यहां आप हैं तो आप कुछ नया जानना चाहते हैं. मैं आपको 1891 में ले जाना चाह रहा हूं. 1891 में हम गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन था, बाल विवाह हो जाया करते थे. पहले भी होते थे बाल विवाह. 8 साल, 7 साल, 6 साल, 9 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी. ऑन द वेरी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, द टेंडर ब्राइड, जो लड़की होती थी शादीशुदा, उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो जाया करती थी. शादी के बाद तुरंत ही फिजिकल रिलेशनशिप बने गए, उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, 8 साल 9 साल की लड़की, उसकी डेथ हो गई. एक दो नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं. तो अंग्रेजों ने देखा, अंग्रेजों को बुरा लगा. बोले भाई ये क्या बात है, एक तो आप शादी बचपन में कर दे रहे हो, शादी करके आप उसको भेज देते हो ससुराल. ससुराल भेजने के बाद जो है वहां पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाते हैं, और उसमें उसकी डेथ हो जाती है 8 साल की बच्ची की. तो क्या चुपचाप हम देखते रहे? उन्होंने तय किया कि हम एक कानून लाएंगे, एज ऑफ कंसेंट एक्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट? एज ऑफ कंसेंट एक्ट. एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ले आए. उसका पर्पस क्या था? लड़कियों की एज को थोड़ा बढ़ाना चाहते थे ताकि डेथ को रोका जा सके. अब इंडिया में जो हिंदू सोसाइटी के लोग थे नाराज हो गए, बोले हमारा पर्सनल लॉ है, इन आवर पर्सनल लॉ हु आर यू टू इंटरफियर. बात थोड़ी सही भी थी, क्योंकि आप तो अंग्रेज थे, हम गुलाम थे. आप अनडेमोक्रेटिक तरीके से लाते थे. आपका रिप्रेजेंटेशन आप में हमारा तो था नहीं. कुछ मामलों में आर्गुमेंट सही थे, पर कई मामलों में आर्गुमेंट गलत थे. तो पर्सनल लॉज में अंग्रेजों ने अमेंडमेंट किया, और हिंदुओं के एक बड़े ग्रुप ने उसका विरोध किया. कहा द इंग्लिश इज इंटरफियरिंग इन आवर पर्सनल लॉज, दे शुड नॉट इंटरफेयर. उसके बाद कई लेख लिखे गए,
बोंगोबासी एक अखबार था। बोंगोबासी अखबार ने एक लेख लिखा, उसमें अंग्रेजों को लिखा कि ये पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रहे हैं और हिंदू अपने इस मामले को खुद ही निपटा लेंगे। अरे भैया, जब 50-100 सालों 200-300 सालों से घटना चल रही है, लड़कियों की डेथ हो जा रही है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो कोई ना कोई तो इंटरफेयर करेगा। क्यों डेथ को कंटिन्यू कर लेते? आप कुछ कर लेते, आपने नहीं किया तो अंग्रेजों ने किया। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई बातें लिखी बोंगोबासी अखबार में। Then sedition case was registered against Bongobasi editor, 124 capital A IPC. First sedition case was registered 124 A IPC. Why? Because the editor and the newspaper wrote something against interference in personal law. उसके बाद 2013 में एक एक्ट आया, उसका नाम था वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट अंग्रेजों के जमाने में आया। क्यों आया? क्योंकि प्रिवी काउंसिल ने, प्रिवी काउंसिल का मतलब अंग्रेजों के जमाने में जो सबसे बड़ी हमारी कोर्ट थी, प्रिवी काउंसिल ने अबुल फता मोहम्मद इशाक वर्सेस रसूमुद्दीन चौधरी के मामले में 1894 में एक जजमेंट दिया और जजमेंट में कहा कि इस्लामिक फैमिली इंडोमेंट इज इनवैलिड। ये वक्फ अलल औलाद, मतलब अपने बच्चों के लिए वक्फ करना, ये इस्लामिक नहीं है, गैर इस्लामिक है। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब था टू डिटेन, रोक देना। अल्लाह के लिए, इस्लाम में जो भगवान है उनके लिए हमने संपत्ति रोक करके रख दी। अब वो संपत्ति मैं यूज नहीं करूंगा, अब वो संपत्ति दूसरों के लिए यूज होगी। मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है? कुरान में तो वक्फ वर्ड का यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा है। कुरान ने साफ साफ कहा है कि गरीबों के लिए, लाचार लोगों के लिए आपको कुछ न कुछ दान करते रहना है, दान पुण्य करना है आपको। So while Quran does not use the word waqf, it has the exhortation that the people of Islamic faith must give something for the poor, for the needy, for the indigent, चैरिटी टाइप की आपको करना है, रिलीजियस पर्पस के लिए। उसमें एक प्रकार है, उसमें कई प्रकार है। एक प्रकार है वक्फ अलल औलाद, दूसरा हो गया वक्फ बाय यूजर। तो वक्फ का मतलब है कि मेरी संपत्ति है, मेरे पास 2 मकान है, हमने एक मकान कहा कि भाई अब हम ये मकान हम वक्फ कर रहे हैं, अल्लाह उसका मालिक हो गया। और ये जो मकान है, इस मकान में विद्यार्थी रहेंगे और फ्री में रहेंगे और वो पढ़ाई करेंगे, यहां पर गरीब बच्चों की पढ़ाई होगी, यहां पर हो गया वक्फ, हो गया, बहुत अच्छी बात। दूसरी कैटेगरी वक्फ की क्या थी? वो कैटेगरी थी हमने वक्फ कर दिया प्रॉपर्टी का, अब इसका यूज मेरे घर के लोग करेंगे, मेरे बच्चे करते रहेंगे लगातार। ये था वक्फ अलल औलाद, औलाद के लिए। प्रिवी काउंसिल ने कहा अबुल फता मोहम्मद रसूमुद्दीन चौधरी, नोट करते चलिए आप, 1894 में प्रिवी काउंसिल ने कहा यह कैसा वक्फ है भाई? वक्फ तो अल्लाह को किया जाता है, अल्लाह को मालिक बनाया जाता है। किसके लिए? अपने लिए थोड़ी किया जाता है, इसलिए कि भाई गरीबों को फायदा हो। यह कहा गया है कुरान में, अपने लिए थोड़ी कहा गया है। आप अपने लिए करेंगे तो अल्लाह थोड़ी खुश होगा। दूसरों के लिए करिए, जरूरतमंदों के लिए करिए, पर यह प्रावधान कर दिया गया था स्वार्थ में आके, वक्फ अलल औलाद के रूप में। उसके कभी कभी कुछ वैलिड रीजन भी थे। और रीजन ये था कि जो मेरी संतानें हैं, वो संतानें इस संपत्ति को बेचे ना, ये इसी तरह काम होता रहे, भगवान के नाम पे रहे, ईश्वर के नाम पे रहे। पर प्रिवी काउंसिल ने डिक्लेयर कर दिया 1894 में कि ये वक्फ अलल औलाद इलीगल है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट या कोई और सुप्रीम कोर्ट या कोई और सरकार कर रही है। पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप पहले से होते रहे हैं, सुधार करने के लिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने कैसे, हाउ द इंग्लिश इन 1891 brought Age of Consent Act to have a reform in Hindu personal law. After 3 years, through judiciary, there was a reform in Muslim personal law also. But then उस समय भी लोग नाराज हो गए। ये क्या बात कह दी भाई?
हमारे धर्म में जो लिखा है, हम तो आंख बंद करके धर्म पालन करते हैं, भले ही गड्ढे में गिर जाए, भले ही अन्याय होता रहे, आंदोलन होता रहा। अल्टीमेटली 1913 में जिन्ना साहब ने अंग्रेजों को कन्विंस कर दिया कि एक नया लॉ बनाया जाए, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, जिसमें कि वक्फ अलल औलाद को आप जो है एडमिट कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहां मान्यता है। उन्होंने कारण भी बताया कि इसका पर्पस यही है कि वक्फ बच्चों के लिए भी किया तो बच्चों की भी चिंता नहीं और बच्चे उसको किसी और को बेचे ना। तो अल्टीमेटली 2013 में, सॉरी 1913 में वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया। सो अमेंडमेंट करना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी अमेंड किया है, लेकिन उसका वो बैक डेट से चाहते थे कि उसका रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो, बैक डेट से एप्लीकेशन हो। प्रिवी काउंसिल सेड हम बैक डेट से एप्लीकेशन नहीं करेंगे, जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं करेंगे हम, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट नाम था, हम इसका रिट्रोस्पेक्टिव पहले से भी बैक डेट से एप्लीकेशन नहीं करेंगे। 1923 में एक और एक्ट आया, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। उसमें कुछ रूल बनाए गए अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के लिए। अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, ओपननेस कैसी आएगी। सो एक रूल बनाया, 1923 में एक्ट आया। उसके बाद 1930 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 फिर से आया, और यहां पे फैमिली जो वक्फ था, वक्फ अलल औलाद जो था, इट वाज गिवन ए रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि मुसलमानों को खुश रखना होगा, तभी वो हिंदुओं के साथ अलग रहेंगे और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारी चलती रहेगी। नहीं तो अगर हिंदू मुस्लिम मिल जाएंगे तो देश को गुलाम बनाए रखना लंबे समय तक मुश्किल है। सो उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों को खुश कर देते, इसको अपीसमेंट पॉलिसी कहते हैं। उनको खुश करो, उनको बोलो कि तुम अलग हो, एंटिटी बिल्कुल अलग हो, तुम आपका अलग है, आइडेंटिटी अलग है। तो अल्टीमेटली 1913 में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके दबाव में आ गई, उन्होंने वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 को बैक डेट से लागू कर दिया। 1950s में भी कुछ डेवलपमेंट हुए। अगेन आई विल कम टू हिंदू लॉ फर्स्ट। देश आजाद हुआ, वैसे तो उसके पहले 1939 में भी मुसलमानों के एक्ट से जुड़ा कानून आया और कुछ संशोधन हुए, एंड दैट टाइम दोस अमेंडमेंट वेर वेलकम। यद्यपि कि जो वो संशोधन हुए थे, मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को लेके 1939 का एक्ट आया था, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। 1937 में शरीयत एक्ट आ गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, शरीयत लागू करेंगे सब पे। जबकि मुस्लिमों में भी अलग अलग कैटेगरी है, सब लोग शरीयत की सारी बातें तो मानते नहीं है, कुछ लोग शरीयत को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक्ट सब पे लागू कर दिया गया। उस समय ये नहीं सोचा गया कि भाई ये लॉ तो सब पे लागू नहीं हो रहा है, उसको बहुत वेलकम किया गया। दूसरी कम्युनिटी उसके खिलाफ थी। हम आते हैं अब 1950s में, तो हम लोगों ने देखा 1891, 1894, 1913, 1923, 1930, 1937, 1939, 1950, देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के पहले हमारा संविधान बना। संविधान में सभी लोगों को धर्म के बराबर के अधिकार दिए गए। प्रियम्बल में भी कहा गया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 1950 में ही कह दिया गया विश्वास करने की स्वतंत्रता है, फेथ, वर्शिप, पूजा करने की भी स्वतंत्रता है। हमारे प्रियम्बल में शुरुआत में ही कह दिया गया। उस समय तो सेकुलर वर्ड नहीं था, पर इसलिए नहीं था क्योंकि जब बात कह दी गई कि सबको बराबर का अधिकार है प्रियम्बल में, तो उसकी जरूरत भी नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी, जब प्रपोज किया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड डालना है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी देयर आर एनफ प्रोविजन। देन आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25, 26, 27, 28, फिर 29 और 30, इतने ब्रॉड राइट तो शायद ही दुनिया में किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं।
और वह भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वेयर देयर वाज ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसके बाद भी देखिए कि हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का दिल कितना बड़ा था। पाकिस्तान बन गया रिलीजन के आधार पर। तो उस समय के जो लोग थे, हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो इंडिया को हिंदू कंट्री बना सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारी कंट्री ऐसी होगी जो सभी फेथ को बराबर मानेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे देश में हजारों सालों से चला रहा था। दिस इज नॉट जस्ट 1950। इंडिया वाज सेकुलर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, thousands of years. We have always welcomed people of other faith. We have assimilated. हम तो सर्व धर्म संभाव में बहुत दिन से बात मानते हैं। हमें कोई सिखा वाले भी लोग हैं, कोई भी पर हम उसमें नहीं जा रहे हैं। और इस कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता है। पर ये जो स्वतंत्रता है, ये पूछने पर थोड़ा सा चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, मैं देख रहा हूं। जो हमें स्वतंत्रता मिली है, it is subject to public order. Number 1, morality. Number 2, health. Number 3, number 4, other provisions of this part. फंडामेंटल राइट में और जो लिमिटेशन है, आर्टिकल 19 में लिमिटेशन है। आर्टिकल 19 में कई लिमिटेशन हम जानते हैं, ये सब पे सब लागू होता है 25 के ऊपर। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो एक अगली बात ये समझनी है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ए फंडामेंटल राइट विच इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड। ये जो 3 बताए गए हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, इसके अलावा भी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन कौन है? फंडामेंटल राइट के और लिमिटेशन। 19 में कुछ लिमिटेशन है, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 में लिमिटेशन है, आर्बिट्रीनेस का लिमिटेशन है, रिजनेबलनेस का लिमिटेशन है। ये सब लागू हो रहा है, स्टेट के ऊपर भी लागू हो रहा है, स्टेट को पावर भी है, दोनों चीजें। किसको दिया? ऑल पर्सन, सिटीजन नहीं, ऑल पर्सन, विदेशियों को भी दिया पावर। इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। अगर वक्फ जो है आपके रिलीजन का, हमारे रिलीजन का, मुसलमानों के रिलीजन का अनिवार्य हिस्सा है, वो फंडामेंटल राइट है। सो रिलीजन का एक हिस्सा है अगर वक्फ, तो इसका मतलब सब्जेक्ट टू दिस मैटर भी है। देन क्या है? आगे पढ़िए 25(2). Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. लॉ बनाने से नहीं रोका जा सकता। अभी लॉ ही तो बना है, लॉ हैज बीन मेड। क्या? रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी। वहां की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारा राइट टू रिलीजन है, हम करेंगे, लेकिन अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, अदर सेकुलर एक्टिविटी हो रही है जो रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ जुड़ी हो सकती है, तो वक्फ में हमने प्रॉपर्टी भगवान को दे दी, अब वो प्रॉपर्टी का दुरुपयोग होने लगा, तो इंटरफेरेंस पहले भी हुआ है। हम देखेंगे आगे 50 में 50 पर जब आगे बढ़ेंगे तो 25 का क्लॉज ए क्लियरली कहता है कि राइट टू रिलीजन में अगर आप क्लेम कर रहे हैं, हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि वक्फ मेरा राइट टू रिलीजन है, तो ऊपर के 3-4 लिमिटेशन के साथ साथ 25(2) का भी लिमिटेशन लागू हो रहा है। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, अदर सेकुलर एक्टिविटी के लिए भी रेगुलेट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इवन इफ वो रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ा हो। लेट 25(2) ऑल्सो 2 का बी प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म करने की भी पावर स्टेट के पास है, हम रिफॉर्म भी कर सकते हैं। स्पेशली क्या? थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हिंदुओं के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको ओपन करने के लिए जरूरी क्यों था? क्योंकि मंदिरों को कह दिया था मंदिर में ये प्रवेश नहीं करेगा, वो प्रवेश नहीं करेगा। So the restriction on the entrance of certain communities like scheduled caste, scheduled tribe in the Hindu temples, so डिक्लेयर कर दिया कि नहीं कर सकते आप। ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर, जो पब्लिक कैरेक्टर के हो, प्राइवेट मंदिर आपका मंदिर है, कोई बात नहीं, रखिए आप। टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू
तो हिंदुओं के लिए सबके लिए ओपन हो गया। अब कोई कहे भाई इंटरफेरेंस हो गया हमारा, भैया 1000 साल पहले आप किसी को मंदिर में नहीं घुसने देते थे किसी कारण से, कहते थे कि ये तो हरिजन है, नहीं घुसेगा मंदिर में, ये तो आप तब भी गलत करते थे, पाप करते थे, लेकिन नहीं, हाँ एक प्रैक्टिस मान लो, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इक्वलिटी लागू हो गई, ये ड्यूटी है कोर्ट की, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की, और इसलिए 25B में बात लिखी गई। हम एक्सप्लेनेशन जो उसका उसको मिस करके आगे बढ़ रहे हैं, 26 में देख लेते हैं। 25 कही दिया गया मोर पर्पस, धर्म का काम के काम के लिए क्या है, चैरिटेबल क्या हुआ, हम अनाथाश्रम को रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। दूसरा क्या है, बी 26 का बी, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के मामले में, ये देखिए रिलीजन के मामले में, सेकुलर मामले में नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के मामले में नहीं, रिलीजन के मामले में हमको अपने अफेयर्स को मैनेज करने का राइट है। तो रिलीजन का मामला क्या है भाई, हम पूजा कैसे करेंगे, कितने बजे से करेंगे, कितना प्रसाद बांटेंगे, ये रिलीजियस मैटर है। हम वक्फ करना चाहते हैं, किस चीज को वक्फ करेंगे, किस प्रॉपर्टी को करेंगे, हमारा अपना मैटर है, हम करेंगे। मेरी प्रॉपर्टी है, 2 मकान है, हम 1 मकान को करेंगे वक्फ। हमारे पास 5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए करेंगे, हम 5 लाख के 5 लाख कर सकते हैं, हमारा अपना मैटर है, करेंगे रिलीजियस मैटर के बाद। पर जब हम वक्फ कर देंगे, अच्छा आगे बढ़ते हैं, पहले टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमोबल प्रॉपर्टी। जो ये रिलीजियस लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी, इस तरह की इमोबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, अंडरलाइन द वर्ड अकॉर्डेंस विथ लॉ। हम प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, पर किसके अनुसार, कानून के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं, मनमानेपन के अनुसार नहीं, हम लॉ के अनुसार उसकी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। धर्म का तो रोल केवल लिमिटेड रोल है, धर्म का पर्सनल मैटर तो बहुत लिमिटेड है। तो मान लीजिए हमने वक्फ कर दिया और कहा कि ये जो वक्फ है हमारी प्रॉपर्टी, ये जो है गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाएगी। 2-4-10 साल दी गई, उन्होंने नियुक्त कर दिया, एक मैनेजर नियुक्त कर दिया, इसको मुतवल्ली कहते हैं, वक्फ करने वाले को वाकिफ कहते हैं। मुतवल्ली तो उसमें कुछ समय तक चला, 10 साल 20 साल। उसके बाद 2-4 बच्चे आए, उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ, हम गरीब बच्चे हैं, हमें दे दीजिए जगह। उनका जी जगह नहीं है, लेकिन अगर कुछ पैसे दे दो तो हम तुम्हें जगह दे दें, एक कमरा खाली है बना देंगे, उसमें 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे रख देंगे। उन्होंने 10,000 रुपए दे दिए, बस चलो हो गया। अब ये करप्शन शुरू हो गया वक्फ में। रिलीजियस काम आपका जहां तक है वहां तक इंटरफेरेंस स्टेट नहीं करेगी। और क्या हुआ भाई, 10-15 साल 20 साल हो गए, धीरे धीरे करके पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा दिया। वक्फ बना किस लिए, गरीब बच्चों के लिए। आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा दिया। जब संसद में डिबेट हो रही थी, देन वन ऑफ द मिनिस्टर हैज ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ द फैक्ट, एंड ऑल्सो गवर्नर ऑफ बिहार हु हिमसेल्फ इज ए मुस्लिम पर्सन, उन्होंने कहा इन हैदराबाद देयर इज ए वक्फ प्रॉपर्टी, इट हैज बीन गिवन टू 5-स्टार होटल। वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसके लिए बनाया भाई, गरीब आदमी के लिए बनाया है, लाचार आदमी के लिए, मजलूमों के लिए, जरूरतमंदों के लिए बनाया था। आपने उसमें 5-स्टार होटल खुल गया, उसमें भाई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 10, 15, 20, 25, 30, 40 सालों में किसी ने ध्यान नहीं दिया। शुरू में चला कुछ दिन तक, अब उसमें 5-स्टार होटल खुल गया। नो 5-स्टार होटल खुल गया, थोड़ा सा मान लेते हैं, चलो भाई हमारे पास वक्फ प्रॉपर्टी है, हमने यहां पर सोच रहे थे कि यहां पर हम ये प्रॉपर्टी मान लीजिए कि एक बहुत ही, यहां पर एक 2 कमरे का मकान है, पर बहुत प्रॉपर्टी का कॉस्ट हो गया है, तो हम अनाथालय खोले थे। आप जबलपुर में है तो जबलपुर की मेन सिटी में अनाथालय खोले हैं, या आप दिल्ली में है या बंबई में है, अनाथालय खोले हैं, 2 कमरे का मकान है। किसी ने बताया कि अरे भाई ये 2 कमरे का मकान है, इसको आप यहां दे दीजिए किसी को किराए पे, अभी आपको जो है इसके 20 लाख रुपए मिलेंगे, आप बगल में बड़ा अनाथालय खोल लीजिए। चलो ये भी ठीक है, ये भी मान लेते हैं। हाँ भाई चलो, आपने उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया तो आपने उसका फायदा किया, तो ज्यादा गरीबों को ज्यादा फायदा होगा, वो प्रॉपर्टी आपने दे दी। और ये क्या हुआ है इसमें, जिसको ये 5-स्टार होटल दिया गया है उससे बहुत ही मिनिमम किराया लिया जा रहा है। कहा जा रहा है जी यहां का किराया पहले से वक्त में तय था। क्यों भाई, क्योंकि रीजन इज वेरी क्लियर,
वास्तव में उसका किराया उस जमीन का 10 लाख रुपए है, आप किराया 10,000 रुपए दे रहे हैं, बाकी पैसा करप्शन तरीके से वहां 10, 12, 15 लोगों की जेब में जा रहा है। एक एग्जाम्पल है, इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल वक्फ में है। वक्फ जैसी धार्मिक चीज, पर्सनल चीज का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, वो एक बहुत ही एक घृणित काम हो रहा है वक्फ के नाम पर सारे कंट्री में। ऐसा नहीं है कि ये काम केवल यहीं तक लिमिटेड है, हम कभी कभी मंदिरों के नाम पर भी सुनते हैं। हमने सुना होगा आपने भी कि पूजा के नाम पर पैसा लिया और पैसे का हिसाब किताब नहीं दे रहे। लालची लोग होते हैं, वो तो एक धर्म में नहीं होते, हर धर्म में होते हैं। वो केवल धर्म का दुरुपयोग करते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ नहीं करता। बिकॉज वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव ए फंडामेंटल राइट प्रोविजन एंड वी हैव ए रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। We have promised we the people of India to make India sovereign, socialist, secular, democratic republic. और सबको क्या देना है? न्याय देना है हमें सबको। हमने प्रॉमिस किया है एक दूसरे को, हमने आपस में 26 नवंबर 1949 को ही किया है। कोई ऐसा करेगा तो ये स्टेट की ड्यूटी बनती है इंटरफेयर करे। तो ये 25 और 26 के क्वेश्चन चूंकि आए थे, इसलिए मैंने 25, 26 के क्वेश्चन को यहां पर डील कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये वायलेट नहीं, बिल्कुल वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले तो 25 के टेस्ट को पास कर लिया। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि भैया हमारे रिलीजन का पार्ट है। अगर रिलीजन का पार्ट है इसका मतलब है कि 25 है आपके पास, आप यही कह रहे हैं। 25, 26 केवल बात नहीं कर रहे हो आप। डू नॉट रीड 26 इन आइसोलेशन। 25 पहले है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है आपको, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपको, बट देन ये लिमिटेशन भी है। और जमा हो रहा है हिंदू टेम्पल आज से 50 साल से हो रहा है, तो क्या हो गया दिक्कत भाई? वहां गड़बड़ी हो रही थी तो उसको ठीक किया, चलो। वहां मनमानापन हो रहा था, वहां गलत तरीके से काम कर, तो यहां रोक दिया, तो क्या दिक्कत हो गई? अब ये जो है कुछ लोग जो अपने को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो हाई तौबा मचा दिए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या? जबकि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इसके सिर्फ फेवर में है। बिहार के गवर्नर जो खुद ही इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान हैं, जो पहले केरल के गवर्नर थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने खुद ही कहा है कि एम आई नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स? एम आई नॉट अवेयर ऑफ कुरान? आई एम टेलिंग दिस इज राइट स्टेट। व्हाई डू यू से कि ये जो 4 लोग हैं यही लोग हैं? ए नंबर ऑफ शिया मुस्लिम्स, दे हैव गॉन टू द कोर्ट सपोर्टिंग, ए ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस आल्सो आर सपोर्टिंग। तो एक तो हमें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये जो है ये इंटरफेरेंस हो रहा है और मुसलमान बहुत दुखी, मुसलमानों का एक वर्ग है उसको मिसलीड किया जा रहा है। जैसे मैंने क्या बताया, 1891 में जब चेंज हो रहा था, चेंज सही काम के लिए हो रहा था। 8 साल की उम्र थी, उसको बढ़ा के 10 साल कर रहे थे। अब एज 18 साल हो गई है। पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? अब हम 21 साल भी करना चाह रहे हैं, बोलिए पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप हो रहा है क्या? तो ये हमारी ब्रॉड थिंकिंग है। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लेट अस अंडरस्टैंड। लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान भी हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो बड़े लॉयर हैं, वो भी इस बात को छिपा दे रहे हैं कि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें जस्टिस देना है, हमें इक्वलिटी देना है, हमें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस क्या होती है? वक्फ वाज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इकोनॉमिक जस्टिस। गरीबों को पैसा मिले, उसकी बजाय पैसा कुछ खास लोगों की जेब में जा रहा है। तो इसलिए जो है ये नया कानून लाया गया है, और कानून में कहा गया है कि जो है भैया ये कानून में पहले भी थी व्यवस्था। But before I come to that, I will quickly go through what happened 50 onward. 1950 में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि हिंदुओं के कानून में संशोधन की जरूरत है, मुसलमानों के कानून में भी संशोधन की जरूरत है, सुधार करना पड़ेगा। पर चूंकि हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदू थे, तो उन्होंने कहा पहले हिंदुओं के कानून में संशोधन कर दें। वो इसलिए भी कहा कि प्रूफ नहीं बना सकते, एजुकेशन उसमें वो बोलेगा कि हस्बैंड या वाइफ की रिलेशनशिप में डाइवोर्स का प्रोविजन क्यों नहीं होना चाहिए? हम पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, पहले हम हिंदुओं के रिफॉर्म करते हैं, मुसलमानों को करेंगे तो जानते थे कि नाराज हो जाएंगे। अब देखिए ना, अभी जब भी रिफॉर्म किया जाता है ग्रुप खड़ा हो जाता है, आंदोलन करने लगते हैं। बंगाल में मार भी दिया दंगा करके, 3 लोगों को मार दिया, उनको मर्डर कर दिया 3 लोगों का मुर्शिदाबाद में। उनका क्या कसूर था बताइए आप, बेचारे क्या किए थे वो? पर जोश, उन्होंने होश खो दिया अपना, पागल हो गए बिल्कुल कुछ लोग इस दिशा में आकर।
तो उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ओके, पंडित नेहरू के साथ कि थोड़ा हम चेंज करते हैं, हिंदू लॉ में पहले चेंज करते हैं, क्योंकि हिंदू लॉ में बहुत सारी कमी है। एक तो सबसे बड़ी कमी यह है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो पा रहा है। इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, पहले भी होते थे, पुराने भी हमारे बहुत पहले के, ये कोई नई बात नहीं है इंटरकास्ट मैरिज। उन्होंने कहा मैरिज किसी में भी हो सकता है, हिंदू मैरिज के लिए व्यवस्था करने लगे, डाइवोर्स की व्यवस्था करने लगे और हिंदू कोड बिल लेकर आए। हिंदू कोड बिल ने हिंदू लॉ में रिफॉर्म करने के लिए सोचा। अब जो है हिंदुओं का भी ग्रुप खड़ा हो गया, बोला हमारे पर्सनल लॉ में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनका कहना यह था, करना है तो सबका करिए आप। वो भी बात सही थी, जायज थी कि भैया तुम मुसलमानों के लॉ में क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, क्रिश्चियन के लॉ में नहीं चेंज कर रहे, हिंदुओं को लॉ क्यों चेंज कर रहे हो, क्या कमजोर समझते हो। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, रिफॉर्म कहीं ना कहीं शुरू होना चाहिए, सम रिफॉर्म मस्ट बी टेकन, सो आई सपोर्ट दैट रिफॉर्म। लेकिन इतना विरोध हुआ, डॉक्टर अंबेडकर हैड टू अल्टीमेटली रिजाइन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मित्रों और विद्यार्थियों कि जब रिफॉर्म होता है उसका विरोध होता है, विरोध से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार को सख्ती से खड़ा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से खड़ा होना चाहिए। रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म का साथ देंगे हम, और बाय एंड लार्ज सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह कानून वैलिड ही डिक्लेयर होगा। हो सकता है कि स्टे हो जाए अभी, पर ये अल्टीमेटली वैलिड डिक्लेयर होगा। और जब ये वैलिड डिक्लेयर होगा, आप याद करिएगा आज के लेक्चर को, तो उस समय विरोध हुआ। तो विरोध हमेशा होता है, whenever there is a question of reform, there are certain group of people who love status quo, who do not want to change, either because of ignorance or because of vested interest. उनका इंटरेस्ट है इसमें, दोनों बातें हो सकती है, या तो इग्नोरेंस है या वेस्टेड इंटरेस्ट। वो विरोध किया, पर अल्टीमेटली 1955 में और 56 में हिंदू लॉज में कुछ चेंजेस लाए गए। एक शादी होगी, बताइए अच्छा काम किया कि नहीं किया, आप खुद बताइए, खुद सोच के बताइए। पहले क्या था, हिंदू एक से ज्यादा शादी कर सकता था, चेंज किया, अच्छा काम किया, ठीक तो किया। भगवान राम ने एक शादी की थी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, तो रामत्व को लेकर आए। 1955 में रामत्व आ गया, हमें कहेंगे राम के आदर्श को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया और अच्छा काम किया। तो लॉज को रिफॉर्म किया गया, हिंदू लॉज को। 1950s में ही 54 में वक्फ एक्ट को अमेंड किया गया। 54 में वक्फ एक्ट आया, 1984 में इस वक्फ एक्ट में फिर से संशोधन हुआ, कई बार हुए, कई बार चेंजेस किए गए। So just want to convey to you that this amendment is not a new type of amendment. A lot of amendment has already been done in various times. पंडित नेहरू के समय में अमेंडमेंट हुआ वक्फ कानून में, 1969 में इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ अमेंडमेंट, 1984 में इंदिरा जी और बाद में राजीव जी आ गए, उनके टाइम में उसको इन्फोर्स किया गया। 1995 में एक नया वक्फ एक्ट ही आ गया, पुराने एक्ट को हटा करके। वहां ये सब प्रॉब्लम लाई गई थी कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्प्यूट आ रही है, इसको दूर करना है, उसके लिए वक्फ एक्ट में प्रोविजन किया गया था। वक्फ काउंसिल बनाया गया, स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखे गए, मुतवल्ली की ड्यूटी रिकॉग्नाइज की गई। 1995 की बात कर रहा हूं, नॉट 2025, 30 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको जानकारी सही सही होनी चाहिए, सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए। वक्फ ट्राइब्यूनल तभी बनाया गया था 1995 में कि वक्फ का जो डिस्प्यूट होगा वो ट्राइब्यूनल में जाएगा, स्पेशल कोर्ट होगा, ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा, ये उसी समय कहा गया था। 1995 में कोई वो सरकार नहीं थी कि जैसे आज हम कह रहे हैं लोग कि ये सरकार आ गई है, मोदी सरकार आ गई है, ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं है। 1995 में किसी और की सरकार थी। 1984 में जब अमेंडमेंट किया गया था तो बीजेपी की केवल 2 सीटें थी, उस समय भी हल्ला गुल्ला किया था लोगों ने। 1986 में क्या हुआ आप सबको पता है, नहीं जानते हो तो एक बार फिर से याद दिला दूं। 86 में शाहबानो का एक जजमेंट आ गया, कहा गया कि जो मुस्लिम महिला है उसको डाइवोर्स दे दिया है आपने, उनको मेंटेनेंस देना है। तो अच्छी बात है भाई, लड़की कहां जाएगी बेचारी, शादी कर लिया आपने, अब आप डाइवोर्स देना चाहते हैं किसी कारण से, नई लड़की शादी करना चाहते हैं, कोई और बात है, तो उसको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। हिंदू लॉ में देते हैं कि नहीं देते हैं, मुझे दीजिए। अब सारे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया गया। उस समय जरूरी था कि जो बुद्धिमान लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो सब लोग जो समझाते हैं उनको कि भैया रिफॉर्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म किया है, जैसे प्रिवी काउंसिल ने किया था, आपने चेंज कर दिया बाद में, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म किया, बदलिए मत। और 1984 में तो राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत था, 2/3 बहुमत, कोई डरने की बात नहीं थी, कोई सरकार जो ऐसी नहीं थी गिर जाती। लेकिन राजीव गांधी जी घबरा गए, डर गए
और उस समय आरिफ मोहम्मद खान जो अभी बिहार के राज्यपाल है, उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज किया गया। विरोध तब भी हुआ था, उस समय तो कोई सरकार मोदी जी की नहीं थी, कोई और लोग थे। तो ये जो बातें कही जा रही है, आपने सुन रहे होंगे कि कह रहा है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी ले लेंगे, कोई कह रहा है कि मुसलमानों की धार्मिक अधिकार में बिल्कुल खत्म छीन ले रहा है। ये सब जो बातें हैं केवल जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। अगर कानून में कमी है, सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू सी। इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट, पावरफुल सुप्रीम कोर्ट, अगर कुछ कमी है सुप्रीम कोर्ट विल इटसेल्फ डिक्लेयर इट समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर पार्लियामेंट ने कोई गलत काम किया तो। 2006 में हमने चर्चा कर दी, पर्सनल लॉ में अमेंडमेंट किया गया, तो पर्सनली चेंज किया गया। हिंदुओं ने तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाया, आंदोलन नहीं किया, चक्का जाम नहीं किया। क्यों? वी आर रेडी टू रिफॉर्म। जो बदलने को तैयार होता है ना, कहते हैं ना, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते, तुम तो बैठे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते। हिंदू दरिया की तरह है, वो बदलाव चाहते हैं। मुसलमानों का जो एक वर्ग है वो दरिया की तरह नहीं है, झील के पानी की तरह। कुछ मीडिया के लोग, कुछ बड़े वकील 2013 में ऑफ नरसिम्हा राव गवर्नमेंट मुस्लिम एक्सपर्ट डाल, में कोई मुस्लिम एक्सपर्ट नहीं था। इसमें कहा गया मुस्लिम बोर्ड में 2 महिलाओं को डाला गया, ये एक अच्छी बात हुई थी। ये भी कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी का सेल और गिफ्ट नहीं होगा, ये बात 2013 में ऑलरेडी है, उसी को अभी बढ़ाया गया है। देन अभी तो कुछ लोग बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं जैसे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। लीज का पीरियड उसमें बढ़ा करके 3 to 30 इयर्स किया गया था। तो ये सब जो डेवलपमेंट है 2013 तक हुआ। पर्सनल लॉ में जो अगला बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 2017 में। 2017 में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आ गया, और शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ध्यान रखना है, ट्रिपल तलाक आर ऑफ वेरियस टाइप्स, वन इज इंस्टेंट, अगर इज नॉन इंस्टेंट। ओनली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो बाकी ट्रिपल तलाक आप दे सकते हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 3 जजेस ने कहा ये इलीगल है, एक ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कुल मिला के वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहा। 2 जजेस ने कहा कि इस्लामिक ये जो है ये गलत तो है, लेकिन हम इसमें उसको इलीगल नहीं कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में कानून बनाइए। देन इन 2019 द पार्लियामेंट हैज पास्ड ए लॉ। 2019 में 19 जब लॉ आया उसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रोका गया और उसको क्रिमिनलाइज किया गया। अगेन पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग क्राई। अब ये मुसलमान हस्बैंड को जेल में डाल देंगे। आरिफ मोहम्मद खान, उनका एक वीडियो है, उसको आप लोग सब देखिए। उसमें कहते हैं कि बताइए 2019 के बाद से कितने मुसलमानों को जेल में डाला गया। ऐसा बताया जा रहा था जैसे कि मुसलमान हस्बैंड अगर 3 तलाक करेगा तुरंत जेल में डाल देंगे। कितने लोगों को हुआ? बहुत नहीं हुआ। सो लॉ का मिसयूज का चांस तो हो सकता है, लेकिन मिसयूज हुआ नहीं। तो मिसयूज होगा तब तो आप कहोगे भाई। सो जो प्रीवियस लॉ में जो चेंज हुआ, पर्सनल लॉ में चेंज हुआ, 2019 में बड़ा चेंज हुआ, उसका क्या इंपैक्ट हुआ? बहुत सारे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के केसेस में रोक लगी है। महिलाओं को कोई आदमी व्हाट्सएप पर ही 3 तलाक दे रहा है, कोई एसएमएस करके 3 तलाक दे दिया, कारण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हो गया है ऐसा करोगे तो आपको आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा, क्रिमिनल केस भी दर्ज होगा। ट्रिपल तलाक तो महिलाओं के लिए बड़ा ही ये वीमेन इंपावरमेंट का मसला था। एंड देन वी कम टू 2025 and in 2025 we all know that recently an amendment has been passed which is known as उम्मीद क्या नाम है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। वक्फ एक्ट का नाम बदल के उम्मीद कर दिया गया है, क्योंकि वक्फ का मैनेजमेंट करना चाहते हैं। वक्फ आप करो, मैनेजमेंट जो है स्टेट करेगी, स्टेट इंटरफेयर होगा, क्योंकि मैनेजमेंट करने की पावर तो है 25-26 दोनों में। एम्पावरमेंट क्यों? क्योंकि गरीबों को एम्पावर करना चाहते हैं, गरीबों के लिए यूज नहीं हो रहा है उसका। डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि स्कूल खोला जाएगा, अनाथालय खोला जाएगा, अस्पताल खोला जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि मैं तो हैदराबाद से लेकर पटना तक मैं देख रहा हूं कहीं कोई अनाथालय, वक्फ के नाम पर कोई अनाथालय खुला हो, कहीं कोई बड़ा अस्पताल खुला हो,
कहीं कोई बड़ा स्कूल खुला हो, मुझे तो आज तक नहीं दिखता। लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, कहां जा रही है प्रॉपर्टी? तो ये कानून पारित किया गया। अब ये कानून जो पारित किया गया, ये बिल लाया गया। बिल लाने के बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब है कि वह कमेटी जिसमें कि पार्लियामेंट के दोनों मेंबर होते हैं, साइड के, सरकार के भी मेंबर होते हैं और विपक्ष के भी मेंबर होते हैं। सरकार के मेंबर ज्यादा होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जगदंबिका पाल साहब की अध्यक्षता में समिति बनी। इस कमेटी ने देश के कोने कोने में जाकर लोगों से चर्चा की, सभी से राय मांगी, लाखों की संख्या में राय पहुंची इनके पास। उसको डिस्कशन किया, अपने मेंबर से डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद पार्लियामेंट में बिल आया। पार्लियामेंट के बिल में फिर लंबा डिस्कशन हुआ। इतना लंबा डिस्कशन तो बहुत कम बिल में होता है, और लंबे डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट में बिल पास हो गया। तो प्रोसीजर को लेकर कोई कमी नहीं है। पॉलिटिकल क्वेश्चन ऑफ डिजायरेबिलिटी इज रिजॉल्व, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ अब ये बिल पास हो गया, लॉ बन गया है। अब इसकी कुछ प्रोविजन जो स्पेशली डिस्प्यूटेड प्रोविजन है उसको थोड़ा सा देख लें। इस प्रोविजन में पहले की तुलना में यह चेंज किया गया है कि जो कोई प्रैक्टिसिंग इस्लाम का व्यक्ति होगा, 5 साल तक प्रैक्टिस किया होगा, वही वक्फ कर सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ, ये ऐसा इसलिए किया गया है कि ऐसे जब उन्होंने वक्फ कर दिया, उसको लेकर उनके परिवार के लोगों ने विवाद कर दिया, कोर्ट में चले गए। बोले वक्फ के लिए, कोर्ट के केसेस से बचने के लिए कह दिया गया कि जो इस्लामिक आदमी है वही वक्फ करेगा। अगर कोई अपना रिलीजन बदल लिया है तो 5 साल तक बदल के इस्लाम रहे तो वो भी वक्फ कर सकता है। तो एक चेंज किया गया, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। वक्फ बाय यूजर, ये क्या होता है भाई? एक तो होता है वक्फ बाय डिक्लेरेशन, वक्फ हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये वक्फ है। दूसरा है, हमने लोगों को, बच्चों को बुला के पढ़ाते लिखाते हैं, लंबे समय से उनको फ्री में पढ़ाते हैं, उनको किताबें देते हैं, वो लंबे समय से चला रहा है, 20, 25, 30, 40, 50, 60 से होगी। अब यूजर, ये वक्फ बाय यूजर हो गया, यूज से वक्फ हो गया। तो जितनी पुरानी मस्जिदें हैं, बहुत सारी चीजें वक्फ बाय यूजर हो गया। इसको लेके डाउट किया गया है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं इसका क्या होगा। सरकार को उसका जवाब देना है। मुझे सरकार जवाब देगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। पर अगर आपने उस सरकार की जमीन पे कब्जा कर लिया है, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले रेलवे की जमीन पे कब्जा कर लिया है, रेलवे की जमीन पर, सरकार की जमीन पर कब्जा करके मंदिर भी बनते हैं, मस्जिद भी बनते हैं, लोग बना देते हैं। तो सरकार की जमीन तो सरकार की जमीन है, वो तो जब चाहे ले सकती है। ये भी किया है कि वक्फ अलल औलाद जो है, औलाद वाला मैंने बताया पहले, फैमिली वक्फ, जिसको कि 1930 में वैलिड किया गया, रिव्यू काउंसिल को अन इस्लामिक डिक्लेयर किया था, उसके बारे में कहा गया कि वक्फ अलल औलाद करना चाहते हैं तो जो इनहेरिटेंस की राइट्स है महिलाओं का, स्पेशली महिलाओं का, जो उनका जो उत्तराधिकार है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अच्छी बात है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बात की गई। नहीं तो वक्फ अलल औलाद में आपने कह दिया कि प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ कर दी हमने, और अब महिला जो उसकी बेटी है उसको कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में ऐसे मिलता, वो नहीं मिला उसको। एक्ट में यह भी कहा गया है कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर वो वक्फ के रूप में आ गई है तो वक्फ नहीं रहेगी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो टीपीए का नियम है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या कहा गया है? नोबडी कैन पास ए बेटर टाइटल देन द ओनर हिमसेल्फ। ये तो बहुत 1872 का रूल है, उसको यहां केवल लागू किया गया है। मैं मान लीजिए ओनर नहीं हूं किसी चीज का, मैं आपको दे दूं ये प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी? नहीं होगी। इसी को कह दिया गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ कर दी गई है तो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, बी अ डिक्लेरेशन एंड कलेक्टर विल डिसाइड इट अल्टीमेटली, कि चलो भाई देख लेते हैं क्या डिस्प्यूट है इसमें। एक बड़ी दिक्कत ये थी, सेक्शन 40 में बड़ी दिक्कत थी, और सेक्शन 40 में ये प्रॉब्लम थी कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देता था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को वक्फ मान लिया जाता था। अब दूसरी पार्टी जाकर के कोर्ट में अपने आप साबित करते रहे। देयर वर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिसमें पूरे के पूरे गांव को डिक्लेयर कर दिया गया कि वक्फ है, जबकि वो लोग उस गांव में 200-300 सालों से रह रहे हैं। केरल में कई बार हुआ है, क्रिश्चियन की मिशनरी की कई प्रॉपर्टी को उन्होंने वक्फ घोषित कर दिया है, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, रिलीजन इज बीइंग यूज्ड एज ग्रैबिंग मनी। जैसे कभी कभी कुछ लोग मंदिर के नाम पर सरकारी संपत्ति ले लेते हैं, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, वैसे वो कर रहे हैं। तो वक्फ की प्रॉपर्टी वो पावर ले ली गई कि आप डिक्लेयर नहीं कर सकते आप अपने मन से। सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगी, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एडवाइस देगी, वक्फ बोर्ड को एडवाइस देगी,
इसमें मेंबर होंगे जो है महिलाएं मेंबर होगी। आपत्ति यह है कि कुछ नॉन मुस्लिम है, 2 मेंबर्स है नॉन मुस्लिम्स, 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम रखने को लेकर आपत्ति की जा रही है, पर मेजॉरिटी मेंबर्स तो मुस्लिम नहीं है। 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होने से कोई बहुत दिक्कत नहीं हो रही है। हमारी कंट्री में अदरवाइज भी जो है 80% जो है नॉन मुस्लिम्स है, तो 2 मेंबर रखने में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है। पर फिर भी सरकार चाहे तो इस प्रोविजन को हटा सकती है। तो मैंने मेनली जो है जो चीजें हैं उसकी कवर कर लिया है, टाइम हो गया है, अभी तो बहुत लंबा समय इसको बोला जा सकता था। सेपरेट वक्फ बोर्ड बनाया गया है सुन्नी और शिया के लिए, तो ये समय हो गया है बहुत। आपके जो कुछ सवाल है अलग से, उस सवालों को हम ले सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैं एक बार देख लेता हूं कि आपके सवाल क्या क्या है, एंड देन आई विल ओपन दिस हाउस। फर्स्ट क्वेश्चन इज Prashant Kumar, is Waqf Amendment Act really in contravention of Article 26? I told you no, because you cannot just read 26. Constitution is provisions are always read together. एक गोपालन के मामले में यही आर्गुमेंट किया गया था कि सारे आर्टिकल अलग अलग है, 22 अलग है, 21 के साथ 19 के साथ नहीं पढ़ेंगे। बाद में मेनका गांधी ने बात कही कि नहीं, सारे आर्टिकल आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो 26 इज डिपेंडेंट, 26 इज ऑल्सो टू बी रेड विद 25। तो 25 में तो लिमिटेशन सब दी गई है, वो कर सकते हैं हम। तनिष्क का क्वेश्चन है, हाउ डज अमेंडमेंट बैलेंसेस रिलीजियस राइट्स विद पब्लिक इंटरेस्ट? रिलीजियस राइट्स तो है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वक्फ के राइट्स को वक्फ जैसा चाहे यूज करें आप, वक्फ वाला औलाद भी है। वक्फ बाय यूजर को थोड़ा लिमिट किया गया, उसको रिमूव किया गया है क्योंकि उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा था। वक्फ जो डिक्लेरेशन है वो लागू हो रहा है, करिए, कोई मना नहीं कर रहा है। रिलीजियस राइट में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि वक्फ एक पर्पस से किया गया है, तो पब्लिक इंटरेस्ट है, वो पर्पस पूरा होना चाहिए। इट इज ए बैलेंसिंग एक्टिविटी। इफेक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी तो अगर बोर्ड रहेगा, बोर्ड में अगर महिलाएं मेंबर रहेंगी, नॉन मुस्लिम भी मेंबर रहेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी। कृति रामावत ने क्वेश्चन किया है, हाउ विल दिस अमेंडमेंट अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर इनिशिएटिव दैट आर डायरेक्टली फंडेड बाय द वक्फ लॉ? यस, बहुत बढ़िया सवाल है। वक्फ लॉ के द्वारा कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं, पर आप ये समझिए कि अगर 1 लाख रुपए है उनके पास, तो 10,000 रुपए का इनिशिएटिव चल रहा है, जबकि 1 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का यूज होना चाहिए वक्फ के नाम पर। तो अगर ये लॉ आ जाता है, लॉ ठीक से इन्फोर्स हो जाता है, लॉ तो आ ही गया है, ठीक से इन्फोर्स हो जाता है, जो मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में हो जाएगा, तो वक्फ की प्रॉपर्टी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो वाकिफ ने कर रखा है कि ये गरीबों को जाएगा, ये अनाथालय को जाएगा, ये चिकित्सालय को जाएगा, तो अस्पताल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, हो सकता है लॉ कॉलेज भी खुले, जहां बच्चों को कम फीस में पढ़ाई हो सके, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बहुत है, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास है, सोचिए आप। तो वक्फ प्रॉपर्टी पे आप देख सकते हैं कि लीगल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन कितना महंगा होता जा रहा है। और मुसलमानों में तो ऐसे भी जो है वहां पर एजुकेशन का वो जो है उनको फायदा उतना नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल को ले लीजिए, दवाइयां महंगी हो रही हैं। तो इसलिए ये अच्छी बात है, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर की इनिशिएटिव तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे, जिसका मुख्य रूप से लाभ जो है मुस्लिम कम्युनिटी को मिलेगा। सिरिल केशरवानी जी कहते हैं कि हाउ डज इंडियाज वक्फ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कंपेयर विद दोज इन अदर मुस्लिम मेजॉरिटी और सेकुलरिज्म? बहुत अच्छा सवाल है। वास्तव में अगर इसको देखना हो आपको, तो एक ग्लोबल चार्ट दिया हुआ है, और टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा ग्लोबल चार्ट पढ़ के सुनाता कि ग्लोबल चार्ट क्या कहता है। और ग्लोबल चार्ट ये कहता है कि उतने कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ओमान, ईरान, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहरीन की तुलना की है। ये इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। क्या इन सभी जगहों पर लॉ है? आंसर इज यस। क्या मैनेजिंग बॉडीज हैं इसमें, जो ट्राइब्यूनल्स हैं? सब में है, सभी जगह है मुस्लिम कंट्री में। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पोर्टल है, ईरान को और पाकिस्तान को छोड़कर सब जगह सेंट्रल डाटाबेस पोर्टल है। कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, किस स्टेट में है, इसकी पूरी डिटेल है एक जगह पर, होना चाहिए। गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस है, इंडिया के अलावा कतर, सऊदी अरब, टर्की, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन सब जगहों पर मुस्लिम कंट्री में है ये। सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन कहां कहां होता है? सऊदी अरब में होता है, ईरान में होता है, बांग्लादेश में होता है। लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल और मिसयूज कहां कहां है? कतर में है, सऊदी अरब में है, तुर्की में है, ईरान में है, यूएई में है, पाकिस्तान में भी है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट के लिए कतर, सऊदी अरब, तुर्की, इन सभी तीन देशों में व्यवस्था की गई है। कम्युनिटी स्पेसिफिक वक्फ बोर्ड है, बहरीन में है और भारत में भी है। इररिवोकेबिलिटी, कि भाई इररिवोकेबल होगा,
ये कहाँ कहाँ है? इंडिया में है, कतर में है, बहरीन में है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो पैसा आपका है उसका हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करेंगे, ये कहाँ है? इंडिया में भी है, सऊदी अरब में भी है, ओमान में भी है। लास्ट, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। क्या नॉन मुस्लिम भी इंक्लूड हो सकते हैं? ईरान ने कहा यस हो सकते हैं। ईरान में हो रहा है, ओमान में भी है। तो भारत तो सेकुलर कंट्री है भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? इस्लामिक कंट्री ने कह दिया है कि नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करेंगे, सो ए सेकुलर कंट्री लाइक इंडिया इज इंक्लूडिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं बहुत बधाई देता हूं आपको इस सवाल के लिए। और ये जो है ये ग्लोबल चीज बच गई थी, तो ये आ गया। केसरवानी साहब, आप अपनी सप्लीमेंट्री भी इसमें डालते जाइए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सब लोग डालते जाएं। उदित नायक जी का सवाल है, हाउ डज द अमेंडमेंट इंश्योर ए बैलेंस बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? चर्चा कर चुके। ये अमेंडमेंट के कारण रिलीजियस फ्रीडम में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। व्हाट इज रिलीजियस फ्रीडम? यू वांट टू डिक्लेयर व्हाट यू डिक्लेयर, इट कैन बी बाय डिक्लेरेशन, इट कैन बी बाय वक्फ अल औलाद। वक्फ बाय यूजर हैज बीन थोड़ा सा रोका गया है, और वक्फ जो आप ये करते थे आकर के कहीं भी आप आकर के कब्जा जमा लेते थे, वो काम नहीं होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कोई वायलेशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। इंडीड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ मुस्लिम यूजर्स, मुस्लिम पुअर, इट इज रेदर इन्फोर्स्ड। उनका आर्टिकल 19 में, उनका आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन 21 में है, ये सब ज्यादा इन्फोर्स होगा। मुस्तफा रजा मंसूरी जी का सवाल है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंटिसिपेटेड इन इंप्लीमेंटेशन न्यू अमेंडमेंट एट द ग्रास रूट लेवल? फर्स्ट चैलेंज तो यही है कि कैसे जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको कन्विंस किया जाए कि भाई ये अमेंडमेंट आपके फेवर में है, ये आपके अगेंस्ट में नहीं है। आपको याद होगा जब ये पोलियो वैक्सीन का चला था कि पोलियो की वैक्सीन लेनी है, तो मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा वर्ग इसको विरोध कर रहा था। समझाना पड़ा उसको कि भाई पोलियो की वैक्सीन में ऐसा कुछ नहीं है, रिलीजन भी मना नहीं करता। तो एक बड़ा चैलेंज तो पहले इनको समझाना है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ये नहीं कह सकती केवल कि विपक्ष ये कर रहा है। अरे आपके पास पूरा 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 पैराफेर लिया है, आप मीडिया के माध्यम से, आप अपने स्टाफ के माध्यम से, आप स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से, आप इंटेलेक्चुअल के माध्यम से आप जो है इसको फैला सकते हैं। जनता को बताइए क्या फायदा है, और फायदा रियल में दिखाइए। अगले 3-4 महीने में कुछ फायदा करके दिखाइए, केवल बोलने से नहीं होगा। दूसरा चैलेंज ये है कि इस मामले में अब भ्रष्टाचार ना शुरू हो जाए, नया भ्रष्टाचार। ये दो चैलेंज मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं। तीसरा है लाल फीताशाही ना आ जाए, क्योंकि भाई अब इसमें जो है कुछ लोग अपना आर्बिट्री तरीके से काम करने लगे। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये जो है ये 3 चीजें मुझे समझ में आ रही है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्रशांत कुमार जी कहते हैं आर्टिकल 25 रिलेटेड टू रिफॉर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, रिफॉर्म या रिस्ट्रिक्शंस जुड़ा हुआ है। मेरे पास तो समय है, लेकिन आपकी लिमिटेशन है, आपने समय दिया। फिर से मैं आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्सिटी फॉर organizing such a marvelous lecture, to Honorable Vice Chancellor sir, to Registrar sir, to Honorable Dean, Head of the Department, especially my friend Pradeep जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप विद्यार्थियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग अगर मैं एक लिंक भी इसमें फॉरवर्ड करूंगा, एक YouTube चैनल पे मैं अपनी चीजें डालता रहता हूं। अगर आप उस पे जुड़ सके तो जुड़ सकते हैं। वो सोशियो लीगल इश्यूज पे एक वो उस पे आप जो है जुड़ सकते हैं। थैंक यू अगेन। अनुराग दीप ILI करके चैनल है ये, आप इसमें देख सकते हैं।